अब हम डिस्कस करते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपरेशन जो प्रोसेस है वो कैसे दिखता है बेसिकली. दिस इज मेनली फॉर योर रिव्यू आर्टिकल्स, not particularly applicable for a research article. Okay, themes will be there, but जो मैं timeline जिस हिसाब से बताऊंगा, that timeline may vary because in the research article there is another thing called experimental data. So that experiment may take 1 year, 2 years, 6 months. So that may vary. Okay, but other things are more or less similar in both research article and review articles. So in this, I usually divide this complete process into 3 different phases. First is planning phase, writing phase, and editing phase. Okay, this planning phase should be the largest phase where you are planning, you are building up the base, what you have to work on, how you have to work on, what will be the team and everything. All those things you have to decide within this phase itself. Okay, along with that, you have to do the literature survey, you have to prepare your artwork and table content. Everything has to be done within this phase itself. Okay, so it turns out to be 60 to 70% time should be devoted in this planning phase. Then you should move into the writing phase and editing phase. So these two things can be to a 20%, but the main thing is this planning phase. Okay, so 60 20 20, this is my division which I used to follow. Okay, so in the planning phase, what you have to do is, first thing is you have to select the topic, which topic you want to work on. Okay, so I always suggest my students that you should select a topic in which you think you are good at. Okay, don't if you are just preparing a base for yourself in the scientific writing and manuscript publishing domain, you always work in the field in which you think you have passion. ठीक है, वो टॉपिक सेलेक्ट कर लेने के बाद में सबसे पहला काम आपका होता है कि उस टॉपिक के बारे में डेप्थ में जानो. ठीक है, ये कैसे करना है और क्यों करना है? रीज़न ये है कि इंडियन कंटेक्स्ट में जो भी हमको पढ़ाया जाता है, everything is outdated material. Okay, everything is bookish material, everything is just meant for understanding, everything is related to the research. Okay, हम जब रिव्यू आर्टिकल की बात कर रहे हैं, हम पर्टिकुलरली डिस्कस करते हैं अबाउट द रिसर्च एडवांसेस. सो अगर हमको उनको डिस्कस करना है तो हमको पहले खुद से भी तो समझना पड़ेगा कि कितने एडवांसमेंट्स हुए हैं, क्योंकि बुक में तो हमको ये चीज़ें नहीं बताई जाएंगी. बुक इज जस्ट फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग. ओके, और नो टीचर विल इज गोइंग टू teach you all those things. Okay, so आपको पहले समझना पड़ेगा कि टॉपिक में क्या रिसर्च एडवांसेस हैं. तो उसके लिए क्या करोगे, गूगल पे जाओ, सिंपली जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट 3 और 4 रीसेंट रिव्यू आर्टिकल्स 2019 से 2022 के बीच में जो भी आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, रिव्यू आर्टिकल्स, उनको उठाओ. ठीक है, ट्राई टू चूज फ्रॉम सम गुड जर्नल. गुड जर्नल मतलब कि एनीथिंग अबव 5 or 6 impact factor. Try to select those kind of papers, okay, and read it. यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है, रिव्यू आर्टिकल्स को रीड करने का कोई शॉर्टकट नहीं है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप वेयर यू आर क्रिएटिंग बेस अबाउट दिस टॉपिक. ओके, सो इस टॉपिक को समझना है तो उस पूरे के पूरे पेपर को, 2 या 4 पेपर्स को पूरा पढ़ो. पढ़ने से आपको आइडियाज क्लियर होंगे कि उस एक टॉपिक पे अभी तक ही क्या काम हुआ है, और साथ ही साथ में ये भी आइडिया आने के चांसेस हैं कि उस टॉपिक में क्या काम नहीं हुआ है. ठीक है, जो काम नहीं हुआ है, दैट मे बी द पर्सपेक्टिव वेयर यू कैन स्टेट द नोवेल्टी ऑफ योर आर्टिकल. ओके, सो नोवेल्टी कहाँ से लानी है, वो यहीं से ही लानी. ठीक है, जिस समय आप पढ़ रहे होगे उन्होंने क्या काम किया हुआ है, बाकियों ने क्या काम किया हुआ है, और हम क्या काम के बारे में सोच सकते हैं, वो चीज़ आएगी यहाँ पे. ओके, आपको खुद ही समझ में आएगा that you have gained an ample amount of confidence in that domain. Okay, just by reading these 4 or 5 articles. Maybe you may require to read it 2 or 3 times, but पढ़ने के बाद में पूरी की पूरी चीज़ को समझना, डाइजेस्ट करना, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में प्लान करना बहुत 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 आसान हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि आपको उसके टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने हैं. मतलब टेबल ऑफ कंटेंट मतलब अपने रिव्यू के लिए हाउ यू आर गोइंग टू प्लान, व्हाट ऑल टॉपिक्स आर यू गोइंग टू कवर, बिकॉज यू नो अबाउट 6 reviews which are published recently in that domain. So now it will be easy for you to prepare an outline for your article.
ओके, सो आउटलाइन में ये भी चीज़ हो सकती है कि इट ऑल्सो शोज यू हाउ effective your work is, how novelty factor, all those things can be addressed within this table of content. Okay, मतलब this is very critical thing. Okay, तो सपोजिटली अगर आपने एक आर्टिकल है, सपोज अमाइलेज वाला आर्टिकल लिया, उस अमाइलेज वाले आर्टिकल्स के आपने 10 सबसेक्शंस किए। पहला हुआ इंट्रोडक्शन, दूसरा हुआ जो मेन बॉडी है, ठीक है। मेन बॉडी में आपने लिया कि एंजाइम टेक्नोलॉजी क्या है, एंजाइम टेक्नोलॉजी के अंदर में देन अमाइलेज के बारे में डिस्कशन, उसके फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, हाउ टू इंजीनियर अमाइलेज एंजाइम, व्हाट ऑल आर द इट्स एप्लीकेशन। ओके, सपोज ऐसे करके आपने 10 सबसेक्शंस उसके किए कि मेरे को अपने आर्टिकल में ये सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है, ठीक है। दिस में बी अ वेरी रफ ड्राफ्ट टाइप का 5 या 10 सेक्शंस आपने सपोज बना लिए अपने आर्टिकल के, ठीक है। उस आर्टिकल के सेक्शंस बनाने के बाद में यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, अब आपको ये डिसाइड करना है इस पॉइंट पे, वंस यू हैव प्रिपेयर्ड दिस, ये चीज़ डिसाइड करनी है वेदर यू वांट टू वर्क अलोन और यू वांट टू वर्क एज अ टीम। ओके, अगर आपको टीम की तरीके से काम करना है, देन यू हैव टू लुक फॉर अ प्रॉपर टीम हु कैन हेल्प यू आउट एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग योर आर्टिकल रीच इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। ओके, आपको उससे बहुत सारे एडवांटेज भी हैं, बट देयर आर सम फ्लॉज ऑल्सो विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, देन यू आर गोइंग टू डू लिटरेचर सर्वे। यहाँ पे आप पूरा का पूरा उसका सारा का सारा उसमें क्या रिसर्च अपग्रेड हुआ है वो चीज़ आप फाइंड आउट करते हो। तो यूजुअली अगर आप एक रिव्यू आर्टिकल लिखते हो तो यूजुअली लास्ट 5 ईयर्स और 6 ईयर्स की जो भी प्रोग्रेस है उन्हीं को ही कवर करते हैं। हम ज़्यादा पुराने रिसर्च को कवर इसमें करने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है, प्रोवाइडेड उसके ऊपर में सफिशिएंट डेटा अवेलेबल हो तब, ठीक है। बट अगर सपोज बहुत ही कम पेपर्स पब्लिश हुए हैं उस एक डोमेन के ऊपर में, देन वी कैन लुक फॉर ओल्डर रिसर्च ऑल्सो, ठीक। फिर हम लोग एक आर्टवर्क और टेबल बनाते हैं। टेबल्स आर वेरी मच क्रूशियल फॉर एनी ऑफ द पेपर because tables and artwork are the main factors that makes your work very much attractive to the readers. Okay, because you are giving them a very good kind of summary. All these things we'll discuss in the next subsequent classes. Suppose now you have finished all this, then you have come to manuscript writing. So manuscript writing में भी मैं एक ट्रेंड फॉलो करता हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इज लाइक द मेन बॉडी को मैं पहले लिखूंगा। मेन बॉडी ऑफ द टेक्स्ट मतलब कि विच इज अपार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, आउटलुक एंड एब्स्ट्रैक्ट, ऑल दीज थिंग्स आर कैन बी डन आफ्टरवर्ड्स। सबसे पहले जो अंदर का जो मेन कंटेंट है पूरा का पूरा मैन्युस्क्रिप्ट का, दैट विल डिफाइन the novelty, that will define the presentation, that will define the uniqueness of your paper. You have to work on that. Okay, once that is done, try to put some references, मतलब जो referencing है वो करो। ये दोनों चीज़ें simultaneously करो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। But if you are not very much comfortable with that, then you can write and then put the references. Okay, then there is introduction section you have to write, because now you know about the main text. You will be able to easily digest कि introduction कैसे लिखना है। That will come into your mind. What all things I have to highlight in the introduction, what all lacunas are there, and everything can be very easily written. Okay, introduction अगर लिख लिया है तो conclusion and abstract लिखना भी थोड़ा सा आसान हो जाता है, because most of the part of introduction, okay, goes into the conclusion and abstract. So I always prefer doing in this way. अब आते हैं मेन चीज़ आती है आउटलुक सेक्शन की। ये जो आउटलुक सेक्शन होता है, दिस इज द फ्यूचर पर्सपेक्टिव। सो इसके लिए आपको एडिशनल मेहनत करनी पड़ती है, जहाँ पे आपको यही वाले रिव्यू आर्टिकल्स का जो कंक्लूजन सेक्शंस हैं, या फिर आपने जो भी यहाँ पे पेपर्स को रेफर किया है, उन पेपर के जो कंक्लूजन सेक्शंस है उसमें देखो जाके ढूंढना पड़ेगा कि कैसे उन लोगों ने कौन कौन से चैलेंजेस को दिखाया है, व्हाट ऑल थिंग्स कैन बी टेकन एज द चैलेंज। ओके, so you have to mention all those things very critically and उनको एनालाइज करना है, उनके लिए prominent solutions भी आपको बता सकते हो तो वो भी अच्छा रहेगा। So all those things have to be covered in this similar flow. Okay, don't try to change the flow. You will definitely see the results if you follow this flow. Okay, so once your manuscript is written, it calls upon further editing phase.
तो मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग में मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी लैंग्वेज लिखने की कोशिश करो, इट विल नेवर हैपन। ओके, मैं आज मेरे पास में 12 इयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस है, ठीक है, एंड राइटिंग एक्सपीरियंस है, एंड आई स्टिल कैनॉट राइट इन वन सिंगल फ्लो एवरीथिंग, बिकॉज द थिंग इज आइडियाज चेंज एवरी डे, ठीक है। हमारा माइंड इज़ नॉट वेरी स्टेबल माइंड, हम लोग हमेशा डायनेमिक वे में सोचते हैं। तो आज की डेट में शायद हमारे पास आइडिया नहीं है, उसको कैसे अच्छा लिख सकते हैं, कल वो बेहतर हो जाएगा, परसों और बेहतर होगा, एंड देन नेक्स्ट डे पे मे भी हो सकता है वो और बेकार हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ अ वेरी डायनेमिक फ्लो विच वी गो थ्रू, एंड ईच डे इज़ अ डिफरेंट डे एंड वी हैव अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस, ठीक है। तो हमेशा राइटिंग के वक्त में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ। पॉइंट बस ये है कि जो पेपर से पढ़ के आप अपना कंटेंट को उसमें लिखने की कोशिश कर रहे हो, वेदर इट मेक्स द सेम सेंस और नॉट, ठीक है। सेम सेंस का मतलब है कि उन्होंने अगर एंजाइम टेक्नोलॉजी में जो भी एडवांसमेंट दिखाया है, आप उसी एडवांसमेंट की ही बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पेपर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स whom I have mentored, they tend to misunderstand the paper and tend to write something that is not even demonstrated in that paper, okay। so वो logic आपको बस बहुत clear रखना है, so that is the main thing which you have to focus on the writing। editing में क्या होता है कि editing में अब suppose आज की डेट है, आज है सैटरडे, आज और कल आपने एडिटिंग किया, you try to do some good quality corrections, मतलब कि इंग्लिश को कैसे improve कर सकते हो, उसमें यहाँ पे पैराफ्रेजिंग टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, कि हम इंग्लिश को और ज़्यादा मतलब जो क्वालिटी है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑल दोज थिंग्स विल कम इनटू एडिटिंग फेज। इफ़ यू हैव अ टीम, व्हाट यू कैन डू इज, लाइक सपोज मैं और आप, एक और आसिफ, सपोज एक टीम की तरीके से इफ दे आर वर्किंग, ठीक है, तो आसिफ का लिखा हुआ कंटेंट यू कैन एडिट, यू कैन गो थ्रू इट एंड यू कैन गिव हिम सम करेक्शंस। आपका लिखा कंटेंट मैं, मेरा लिखा हुआ कंटेंट आसिफ, ठीक है। तो ऐसे करके सारे के सारे टीम मेंबर्स कैन एडिट ईच अदर्स कंटेंट, एंड वंस वी आर सैटिस्फाइड वी कैन कंपाइल देम इन अ सिंगल ड्राफ्ट। सो लाइक दैट वे इट विल कम अप एज अ मल्टीपल ड्राफ्ट सिस्टम, ठीक है। कि मतलब एक आपका ड्राफ्ट बनेगा, एक मेरा ड्राफ्ट बनता जाएगा और एक आसिफ का ड्राफ्ट बनता जाएगा, देन we'll combine each and every corrections within a single draft, okay। once it is done, you will look for an expert, ठीक है, कोई भी हो सकता है, मतलब maybe your professor, maybe someone else, okay। you can contact them and request them if they are ready to review your manuscript or not, okay। if they are ready, you can send them, they will give you some corrections, you have to do that, resend them, and once all of the members of the team are ready, he will also become a member of your team now, okay। so all the members are ready, then you can your manuscript is prepared for submission, okay। so doing this way you will increase the opportunity of getting your work accepted। why? ये जो expert है, he was not involved in the initial phases of your manuscript preparation, ठीक है। तो आपने यहाँ तक कि जो भी लिखा वो सिर्फ आपका या फिर आपकी टीम का डिसीजन था। सो जैसा मैंने लास्ट स्टेप में बताया, यहाँ पे जो पीयर रिव्यू है या फिर जो एडिटर है, एडिटर इज ऑल्सो सीइंग योर मैन्युस्क्रिप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम ओनली ना। सो उसके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, दिस पर्सन, बिकॉज ही इज एन एक्सपर्ट, ही कैन ऑल्सो प्रोवाइड यू दोज काइंड ऑफ corrections। they may help you out in improving the quality of your manuscript and reducing the chances कि आपका peer review process में से पहले ही पेपर रिजेक्ट हो जाए, या फिर पीयर रिव्यू में जो रिजेक्शन आता है उसके भी चांसेस को कम कर सकता है। तो ओवरऑल दिस वन सिंगल स्टेप में चेंज एवरीथिंग फॉर यू, ओके।